الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ذی الحج کا مہینہ شروع ہے اور قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں. گزشتہ جمعے میں قربانی کے فضائل کا تذکرہ ہوا تھا. آج انشاءاللہ العزیز قربانی کے چند مسائل کو ذکر کریں گے. ظاہر سی بات ہے ہر چیز کوئی بھی عبادت ہو، قربانی ایک بڑی اہم عبادت ہے. ہمارے ہاں قربانی واجب ہے، قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے. تو قربانی ایک اہم فریضہ ہے اور اہم عبادت ہے، اور ہر عبادت ظاہر سی بات ہے سیکھ کر کرنی چاہیے. کسی بھی عبادت کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب بندہ اس کو سیکھ کر ادا کرے، سیکھ کر اس کو عمل میں لائے. بلا سیکھے آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام، بڑی سے بڑی عبادت بھی کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر سیکھ کر کیا جائے، اور یہ کہ کہہ لیں کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ایسی ہے، اگر کوئی کام جس کا آپ کو تجربہ ہے، جس کی آپ کو کوئی سمجھ بوجھ ہے، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن جس کام کا آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کو اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کوئی اس کا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ اس کام پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، سیکھا نہیں ہے، تو عام طور پر ایسے کام میں نقصان ہوتا ہے. تو ہر کام تبھی اچھے طریقے سے انجام کو پہنچتا ہے جب ہم اس کو سیکھ کر انجام دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریڑھی والے ریڑھی لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اب وہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ریڑھی ہے، لیکن وہ اپنی محنت کر رہا ہے، اس کو اس کام کا پتہ ہے، تو اپنا پورا گھر چلا رہا ہے، اس کا گھر چل رہا ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی دیکھیں جن کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے ایسے ہی بس پیسہ ڈال دیا کہیں پہ، کام کا پتہ نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، وہ لاکھوں کروڑوں بھی ڈبو دیا.
तो कोई भी काम है, दुनियावी लिहाज से हो, दीनी लिहाज से इबादत हैं, सीखे बगैर अगर बंदा करता है तो उसका फायदा नहीं होता। तो इसलिए कुर्बानी भी एक अहम इबादत है। अगर आप सीखते नहीं हैं, इवन आप हज उम्रा भी कर लेते हैं, हज करने चले जाते हैं, सीख कर नहीं गए, फायदा कुछ नहीं। नमाज आप पढ़ते हैं, अहम फरीजा है, सीख ही नहीं है, फायदा ही कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, मसाइल का पता हो। अब एक बंदा पैसे भी लगाए, कुर्बानी भी करे, लेकिन वो कुर्बानी हो ही ना, तो कुर्बानी के मसाइल का इल्म होना जरूरी है, उसको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो कुर्बानी के मुतालिक कि कुर्बानी है किस पर है, तो कुर्बानी वाजिब किसके लिए है। कुर्बानी के लिए नंबर 1 मुसलमान होना शर्त है, आकिल बालिग होना शर्त है, आजाद होना शर्त है, साहिब निसाब होना शर्त है। अगर ये शराइत पाई जाती हैं तो कुर्बानी है, अगर ये शराइत नहीं पाई जाती तो बंदे पर कुर्बानी नहीं, वाजिब नहीं है, आकिल नहीं है, मजनून है, कुर्बानी नहीं। हाँ, कोई बेचारा मजनून हो, कुर्बानी के दिनों में ठीक हो जाए, अल्लाह की शान, कुर्बानी के दिनों में ठीक हो गया तो फिर तो कुर्बानी है, अदरवाइज। बल्कि सबसे पहले मुसलमान है तो कुर्बानी है, मुसलमान नहीं है तो कुर्बानी का हुक्म उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए कुर्बानी का हुक्म है ही नहीं। आकिल नहीं है तो कुर्बानी का हुक्म है ही नहीं, बालिग नहीं है तो कुर्बानी का हुक्म उसके लिए है नहीं, आजाद नहीं है, कैद है, उसके लिए कुर्बानी का हुक्म नहीं। तो ये कुर्बानी के वजूद की शराइत हैं। अगर ये शराइत पूरी होती हैं तो कुर्बानी वाजिब होती है, अगर ये शराइत पूरी नहीं होती तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। अब निसाब है उसके लिए, साहिब इस्तिताअत भी हो। निसाब क्या है कि वो अब मुख्तलिफ निसाब है, एक माल तिजारत का है, एक रुपए पैसे का है, सोने चांदी का है। उसके पास ये 52.5 तोला चांदी हो, ये 7.5 तोला सोना हो, ये इतनी मालियत हो तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यानी कि जिस तरह ज़कात का निसाब है, लेकिन ज़कात में चूंकि साल का गुजरना भी शर्त है, यहां पे साल का गुजरना शर्त नहीं है। कुर्बानी के 3 दिनों में अगर किसी के पास इतने पैसे आ गए, जो कम से कम मिकदार जो है ना, वो चांदी का हिसाब लगाया जाता है, 52.5 तोला चांदी का हिसाब किया जाता है। तो अगर किसी के पास इतनी मालियत आ गई कुर्बानी के 3 दिनों में, पहले नहीं थे कुर्बानी के दिनों में, बल्कि कुर्बानी के तीसरे दिन भी आ गई इतनी रकम, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और इसी तरह यहां रकम तो नहीं है, घर में जरूरत से जायद सामान है, मिसाल बर्तन, पत्थर के बर्तन, दूसरे बर्तन, बिस्तर, और इसी तरह और ऐसी मशीनरी रखी हुई है घर में जिसकी जरूरत नहीं है, इस्तेमाल में नहीं है, वो अगर इतनी मालियत को पहुंच जाती है उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। एक दफा घरों में 20-20 बिस्तर पड़े हुए हैं, कंबल पड़े हुए हैं, वो मशीनरी पड़े हुए हैं, बड़े कीमती बर्तन पड़े हुए हैं, और इस तरह की जो है वो चीजें पड़ी हुई हैं, तो अगर जरूरत से जायद सामान है उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। या इसी तरह से कोई प्लाट पड़ा हुआ है, जरूरत से जायद है, घर है, एक तो रहने के लिए रिहायशी मकान है, एक वैसे ही इजाफी घर है, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। एक सवारी इस्तेमाल के लिए है, एक वैसे जायद है, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। तो जो भी जरूरत से जायद सामान है, जो भी जरूरत से जायद चीजें हैं जिसके पास, और उसकी मालियत की मकदार यानी कि इतनी वैल्यू बन जाती है 52.5 तोला चांदी जितनी, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। औरतों के पास आमतौर पर जेवर होता है, औरतों के पास जेवर होता है। अगर खाली सिर्फ जेवर हो ना, 1 रुपया भी पास ना हो, आजकल मुमकिन नहीं है कि किसी पास रुपया भी ना हो, पैसे कुछ ना कुछ तो होते ही हैं औरतों के पास, सोना भी होता है, पैसे भी होते हैं। तो अगर सोना है, सोना रखा हुआ है, अब वो सोना भले चूंकि पैसे भी साथ है, जब पैसे भी साथ मिल जाते हैं तो हिसाब 52.5 तोले चांदी का लगाया जाता है। अब 1 तोला भी अगर होगा तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, 2 तोले, 1 तोला, 2 तोला, क्योंकि 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है मेरे ख्याल 2.25 लाख तक पहुंचती होगी,
और 1 तोला सोना की कीमत वो 2.5 लाख तक पहुंच रही है। तो इसलिए औरतों के लिए खास तौर पर, तो जिन औरतों के पास जेवरात हैं उनके लिए भी कुर्बानी वाजिब है। तो ये कुर्बानी के वजूब की शर्तें हैं। अब जिस पर कुर्बानी वाजिब हो गई है, अब उसके लिए है कि फिर अल्लाह का हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे है। अब उसके लिए ऐसे ही है जैसे अजान हो गई है और नमाज पढ़ना अब हर एक के लिए फर्ज है। साहब इस्तिताअत के जब निसाब पूरा हो गए तो समझो उसके लिए नमाज की तरह फर्ज है। तो अब उसके ऊपर कुर्बानी करना जरूरी है। अगर कोई नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। अब उसको चाहिए कुर्बानी का इंतजाम करे। उसमें फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसके पास कितनी अमाउंट है, कितना इस्तिताअत है। अगर वो बकरा लेने की ताकत रखता है, दुम्बा तो बकरा तो ये लेने की ताकत रखता है तो वो ले ले, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी ताकत नहीं है, निसाब तो पूरा हो रहा है लेकिन बड़ी थोड़ी सी अमाउंट है, तो फिर वो शेयर कर ले, शेयरिंग में ले ले, हिस्सा ले ले, लेकिन कुर्बानी जरूर करे, कुर्बानी जरूर करे। बाकी कुर्बानी का अगर जानवर अपना खरीदना है, सबसे अफजल तरीन चीज तो यही है कि बंदा अपना जानवर खरीदे। इस्तिताअत हो, बड़ा खरीदे, छोटा खरीदे, जैसा कैसा अपना खरीदे, सबसे बेस्ट बात है। लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदे की इस्तिताअत नहीं होती, नहीं खरीद सकता। तो जिस जानवर में हिस्सा ले रहा है या जो बंदा जानवर खरीद रहा है, कोशिश करे कि ऐसा जानवर खरीदे जो उयूबात से पाक, ऐब भी ना हो और उसकी खूबसूरती भी कम ना हो। कोशिश होनी चाहिए खूबसूरत से खूबसूरत जानवर हो और ऐब से पाक जानवर, उसके अंदर ऐब ना हो। अगर उयूबात होंगे उसमें फिर देखा जाएगा कि ऐब की नौयत क्या है, किस नौयत का है। बाज़ उयूबात ऐसे हैं जो काबिल बर्दाश्त हैं, चल जाते हैं, थोड़ा बहुत ऐब है, नक्स है तो चल जाता है। लेकिन बाज़ उयूबात ऐसे हैं जो नहीं चलता, कुर्बानी नहीं होती। तो जब बंदा ये कोशिश करेगा मैंने साफ सुथरा खूबसूरत जानवर लेना है, तो फिर वो उयूबात तलाश करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो वो चीजें होंगी नहीं। जिसने गुजारे लायक लेने हैं उसको फिर इन चीजों का ख्याल रखना होगा कि इस दर्जा लो ना हो कि उसके अंदर ऐसे उयूबात पाए जाते हो जिससे कुर्बानी ही ना हो, उसको ख्याल रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर जानवर ले लिया लेकिन उसकी एक आंख नहीं है, एक आंख ही नहीं है, उसकी आंख से अंधा है एक से। अब ये जानवर तो ले लिया लेकिन इसकी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी हाँ, अगर आंख खराब है, भेंगापन है, कोई ऐसा है और आंख खराब है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि 1 तिहाई तक खराब है, तो फिर वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। या इसी तरह कोई जानवर ऐसा लिया उसका कान खराब है, कान खराब है, अब अगर इतना है कि 1 तिहाई है, 1/3 है, फिर तो चल जाएगा। अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो कुर्बानी में नहीं चलेगा। या इसी तरह कोई ऐसा जानवर है जिसका कान पैदाइशी तौर पर है ही नहीं, तो ऐसे भी जानवर की कुर्बानी फिर जायज है, क्योंकि ऐब भी है, खूबसूरती में भी फर्क आ रहा है। कान ना हो, हम अपने से हिसाब लगाएं, कान ना हो तो बंदा कैसा लगता है। ये हमारा हर जो उज़्व है अपनी जगह पे जो अल्लाह ने फिट किया है, ये खूबसूरती में भी इजाफा करता है। तो कान है ही नहीं किसी जानवर का सिरे से, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी, कि कुर्बानी नहीं होगी। या इसी तरह नाक कटा हुआ है, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। या इसी तरह से सींग है, अगर सींग है ही नहीं, बिल्कुल सिरे से जड़ से ही नहीं है, फिर तो कुर्बानी ठीक है, यानी कि बिल्कुल है ही नहीं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर टूटा हुआ है, अगर सींग टूटा हुआ है, जड़ से तोड़ा गया है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी नहीं, उसकी कुर्बानी। आजकल लोग ये कर रहे हैं कि जानवरों के सींग निकालते हैं, उनको काटते हैं बाकायदा और उनको अंदर से जड़ से निकाल देते हैं, उनके अंदर खूबसूरती लाने के लिए। यही है कि चलो जानवर मारे नहीं, जो भी उनका मकसद है। तो आजकल लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनको तो ये एक वैसे तकलीफ दे अमल है, गुनाह की बात है। जिस तरह इंसानों को तकलीफ होती है, जानवरों को भी तकलीफ होती है।
انسان جس طرح جس چیز سے تکلیف محسوس کرتا ہے، مار سے، دھاڑ سے، کاٹ سے، زخم سے یا دوسری چیزوں سے، جانور کو بھی ایذا ہوتی ہے، اس کو بھی بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے پیسوں کی خاطر، نفع کی خاطر لوگ کر رہے ہیں، باقاعدہ وہ جو ہے وہ آپریشن کرتے ہیں خود ہی اور ان کے جو ہے سینگ ریموو کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ایسا جانور ہے، اب کئی ظاہر بات ہے بڑے بڑے آپریشن ناکام ہوتے ہیں، تو اگر تو آپریشن ٹھیک ہو گیا، ان کا سینگ نکل آیا، کئی دفعہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ زخم بگڑ جاتا ہے۔ زخم ایسا ناڑی بندہ، اس نے ایسا کیا، وہ زخم بگڑ گیا، اب وہ اندر تک زخم چلا گیا ہے، وہ بھرا ہی نہیں ہے، بھرا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا جانور جس کا زخم اندر تک چلا گیا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے بڑا جانور ہے، گائے بھینس ہے، اس کے تھن ہے، اگر ایک تھن خراب ہے، اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، پھر تو چل جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ اگر دو تھن خراب ہو گئے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ بکری ہے، اگر اس کا ایک تھن خراب ہو گیا پھر بھی قربانی نہیں، کیونکہ اس کا تو ایک تھن ہی آدھا بن جاتا ہے، آدھا حصہ بن گیا، تو اگر اس کا ایک تھن خراب ہو گیا تو بھی قربانی نہیں۔ اسی طرح ٹانگیں ہیں، ٹانگوں میں اگر کوئی ٹانگ ایسی ہے، چاروں ٹانگوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اگر کسی ایک ٹانگ میں کوئی معمولی فالٹ ہے، معمولی کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے وہ اس کے لیے قابل برداشت ہے، وہ اس کو ساتھ چلاتا ہے، چوتھا پاؤں بھی زمین پر لگاتا ہے چلنے میں، تو اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اتنا ہی بیچارہ اس کا وہ چوتھی ٹانگ جو ہے وہ اتنی زخمی ہے، یا کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی فریکچر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے سیریس کہ وہ چوتھی ٹانگ زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے جانور، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح دم ہے، اگر وہ تہائی حصے سے زیادہ کٹ گئی ہے تو بھی قربانی ٹھیک نہیں، یا کسی جانور کی پیدائش سے دم ہے ہی نہیں تو بھی قربانی ٹھیک نہیں، اگر ہے بھلے چھوٹی ہو تو قربانی ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چیزوں سے جانور کی خوبصورتی خراب ہوتی ہے، عیب پیدا ہوتا ہے، اور یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، خوبصورتی اور اس کے اندر عیب پیدا نہ ہو۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اب دانت ہے، کسی جانور کے دانت ہے ہی نہیں، ایسے کہ وہ گھاس کچھ کھا بھی نہیں سکتا، کچھ کھا ہی نہیں سکتا، تو اس کی بھی قربانی ٹھیک ہے۔ اگر ویسے معمولی ٹوٹے ہوئے کھا پی لیتا ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ یہ اسکن میں تو ایسی بیماری ہے جو اندر تک گوشت تک چلی گئی ہے، کھال میں ایسی بیماری ہے جو گوشت تک چلی گئی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ٹھیک نہیں۔ جیسے وائرس آ جاتا ہے، گزشتہ یا اس سے پچھلے سال گایوں میں آ گیا تھا، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے اندر تک اگر پھیل جاتا ہے تو قربانی ٹھیک نہیں، اس کی قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جانور کی خوبصورتی کو خراب کرتی ہیں، ان کے اندر عیب پیدا کر دیتی ہیں، اور جب عیب پیدا ہو جاتا ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، تو ایک حد تک تو قابل برداشت ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قربانی کا جانور خریدیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہمارے جانور کے اندر ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ تو آخری بالکل یعنی کہ ایک بارڈر لائن ہے، سب سے پہلے تو اونچا آنا چاہیے، تھوڑا سا درمیانہ بلکہ اونچا اچھے لیول کا جانور لینا چاہیے، ان چیزوں کا شائبہ ہی نہ ہو کہ وہ موٹا تازہ ہو۔ تو ایسا مریض جانور لے لیا جو بیچارہ چل ہی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ٹھیک نہیں، اس کے اندر گوشت ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی قربانی کا تقاضا یہ ہے، جب قربانی کا مطلب قربان کرنے کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے، تو قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ جانور خوبصورت سے خوبصورت۔ مفتی تقی شوانی صاحب دامت برکاتہ میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن پھر بھی بہرحال ایک روایت ہے کہ اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں، تو اس لیے شوق و ذوق سے۔ اور دوسری بات، عام طور پر قربانی سے ہٹ کے اگر ہم نے گوشت خریدنا ہوتا ہے، ہم گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی چیزوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں،
कितनी चीजों की तहकीक करते हैं। भाई जानवर कैसा था, बड़ी उम्र का तो नहीं था, कोई बीमार तो नहीं था, कोई इसके साथ ये तो नहीं था, गोश्त आज का ही है, पानी तो नहीं लगा हुआ, फलां। कितनी चीजों की हम छानबीन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खाना है, बच्चों को खिलाना है, तो मसला ना हो। और छानबीन करने में हरज भी कोई नहीं है। आपने पैसे देने, चीज लेनी, उसमें हरज भी कोई नहीं है, अच्छी बात है, छानबीन करनी चाहिए। लेकिन हमें कुर्बानी के लिए भी ऐसा जानवर चूज करना चाहिए जिसमें ये चीजें ना हो। साफ सुथरा, खूबसूरत, प्यारा जानवर देख के लगे वाकई कुर्बानी दिल से की जा रही है, क्योंकि ये सारे दिलों के सौदे हैं, दिलों के सौदे हैं। तो इसलिए कुर्बानी का जानवर लिया जाए तो उन चीजों का बतौर खास ख्याल किया जाए कि उनके अंदर ये उयूबात न हो। अगर ये उयूबात होंगे तो फिर हमारी कुर्बानी ठीक नहीं, पैसे भी लगाएंगे और कुर्बानी भी नहीं होगी, पैसे भी जाया और नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। हमने तो सवाब समझ के करनी है, लेकिन सवाब मिला नहीं, उल्टा गुनाह जिम्मे में आ गया। तो इसलिए इन जानवरों में इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि इनमें ये उयूबात ना हो। और इसी तरह से जानवर के अंदर खस्सी होना ये ऐब नहीं है। खस्सी जानवर के मुतालिक बाद लोग पूछते हैं कि खस्सी जानवर ये आपने सलाम ने किया है, आपने सलाम ने किया है कि ज़बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबशैनी अमलहैनी अकरनैनी मौजूवैनी, कि आपने सलातो सलाम ने 2 मेंढे किए, 2 मेंढे किए जो चितकुबरे थे, सींगों वाले थे, और जो दोनों खस्सी थे, जो दोनों क्या थे, खस्सी थे। खस्सी का मतलब होता है कि ये नहीं कि पैदाइशी कोई बकरा ऐसा पैदा हो, बल्कि पैदाइशी, अगर कोई पैदाइशी से मुराद कोई बकरा पैदाइशी तौर पर खुनसा होता है, शीमेल होता है, जिसे हम आम उसमें यानी कि मर्दों के उसमें कहते हैं खुनसा, अगर कोई पैदाइशी होता है, ऐसे जानवर की कुर्बानी ठीक नहीं है। पैदाइश ठीक हुआ है, बिल्कुल बकरे की कैटेगरी में है, लेकिन उसके बाद उसको खुद खस्सी करवाया जाए तो ऐसे जो है वो जानवर की कुर्बानी अफजल है। और इसके गोश्त के बारे में फरमाया कि इसका गोश्त भी लजीज होता है, तो इसलिए खस्सी जानवर की कुर्बानी करना अच्छा है, खस्सी जानवर की कुर्बानी करना अच्छा है, बेहतर है। तो ये सारी की सारी चीजें जानवर में देखनी चाहिए। उसके कान सलामत है, उसकी नाक सलामत है, उसके दांत सलामत है, उसका चेहरा सलामत है, उसकी टांगें सलामत हैं, और इसी तरह से उसके जो है बाकी सारे आज़ा, उसकी जिल्द सलामत है, उसकी खाने पीने की सलाहियत ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमें जानवर के अंदर देखनी चाहिए, ये सिफात है, देखनी चाहिए। तो इसलिए एक तो ये हो गया जानवर के सिफात। अब उसके बाद फिर बाज़े मसाइल कुर्बानी के जानवर के हवाले से हमारे बुजुर्गों की गपशप चल रही है, थोड़ा सा एहतियात करें। तो कुर्बानी के हवाले से अब अपने मुल्क में कर रहे हैं, और निसाब को मैंने बता दिया है, अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाज़ लोग बैरून मुल्क होते हैं, कुर्बानी पाकिस्तान में करने चाहते हैं, बैरून मुल्क के अंदर है, कुर्बानी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। उनके लिए जरूरी है कि जहां जिस मुल्क में वो हैं वहां पर भी कुर्बानी के दिन हो और यहां पर भी कुर्बानी के दिन, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर यही ईद लगा लें, हमारे यहाँ कुर्बानी की ईद जो है वो 10 ज़िलहिज हमारी बन रही है सोमवार को, 17 जून सोमवार को, और सऊदी अरेबिया में बन रही है वहां पे 16 जून इतवार को, 16 जून इतवार को। अगर कोई सऊदिया का बंदा पाकिस्तानी बाशिंदा वहां पे है और वो पाकिस्तान में कुर्बानी करना चाहता है तो वहां पीर के दिन और हमारे यहां मंगल के दिन, अब दोनों दिन मैच कर जाएंगे। ये तो हो सकती है, अगर वो अपने इतवार और हमारे सोमवार को करना चाहे फिर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ईद का दिन नहीं है और यहां पे ईद का दिन नहीं है। तो दोनों वाले दिन नहीं, वहां इतवार होगा तो यहां पीर यहां होगी। अगर वहां पे वो हफ्ते को और यहां के इतवार को या इस तरह, तो आखिरी दिनों में मिसाल के तौर पर वहां इतवार पीर मंगल और हमारी है पीर मंगल बुध, तो इनमें कोई 2 दिन मैच करने चाहिए। उनका पीर होगा, हमारा मंगल होगा, उनका मंगल होगा, हमारा बुध होगा। अब दिन मैच कर रहे हैं तो फिर तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर उनके गुजर चुके तो फिर हमारे यहाँ आखिरी दिन है, उनका गुजर चुका है, हमारा जो है बुध आखिरी, उनका मंगल आखिरी है, तो उनका गुजर चुका, हमारा मौजूद है और यहाँ पे कुर्बानी करना चाहता है फिर नहीं। तो अगर कोई बाहर किसी तरह किसी और मुल्क का कहीं और से पाकिस्तान में कुर्बानी करना चाहता है
तो कुर्बानी का दिन वहां पर भी होना चाहिए, भले एक दिन हो, पहला दिन हो, आखिरी दिन हो, दूसरा हो, और यहाँ पे भी होना चाहिए, भले दूसरा हो, तीसरा हो, पहला हो, कोई ना कोई दिन कुर्बानी का होना चाहिए, तो कुर्बानी होगी, वगरना कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह से कुर्बानी के जो अय्याम है, कुर्बानी के अय्याम के बारे में, कुर्बानी 3 दिन है, कुर्बानी 3 दिन है, 10, 11, 12, 10, 11, 12। हमारे यहाँ पीर, मंगल, बुध, बुध की शाम तक 17, 18, 19 की शाम तक कुर्बानी है, 19 की मगरिब से पहले पहले तक 3 दिन कुर्बानी के हैं। 3 दिन क्या है कुर्बानी के? हजरत इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, हजरत इब्न अब्बास वो क्या फरमाते हैं कि अय्याम नहर 3 दिन है। हजरत अली क्या फरमाते हैं? अन्नहर सलासतु अय्याम, अय्याम नहर क्या है? 3 दिन है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर क्या फरमाते हैं? अन अज़हा यौमैन बाद यौमिल अज़हा, ये कुर्बानी के दिन यौमुल अज़हा यानी 10 के बाद 2 दिन है, यानी टोटल क्या है? 3 दिन है। इसी तरह कुरान करीम की तफसीर में वज़्कुरुल्लाह फी अय्याम मालूमात, उसकी तफसीर में भी अब्दुल्लाह बिन उमर क्या फरमा रहे हैं? अय्याम मालूमात से मुराद कुर्बानी के 3 दिन है, कुर्बानी के 3 दिन है। तो इसलिए कुर्बानी के 3 दिन है, 10, 11, 12, 10, 11, 12, ये ज़हन में रहे। कुर्बानी के 3 अय्याम है इन सहाबा किराम की तफसीर के जो है वो मुताबिक। इसी तरह कुर्बानी में एक ये भी मसला आता है, लोग पूछते हैं कि कर्ज लेकर कुर्बानी करना, कर्ज लेकर कुर्बानी करना। अब वो मैटर करता है कि कर्ज किस नौयत का है। कई दफा ऐसा होता है बंदे ने अगर कर्ज देना है तो उसे डबल लेना भी है, उसे डबल, या कारोबारी जो है वो लोन है कि उसमें देना भी है लेना भी है, ये चलता रहता है, मार्केट में आम है। तो ऐसा अगर कर्जा है तो फिर कर्ज ले और कुर्बानी करे, कर्ज ले। और एक वो है जो किसी आम बंदे ने, जो बिल्कुल बेचारा हैंड टू माउथ बंदा है, सैलरी पर्सन है, बिल्कुल लो है, और उसने कर्जा वैसे ही घरेलू चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कर्जा लिया हुआ है, अगली सैलरी पे उसने वो कर्जा चुकाना है, ऐसी सिचुएशन है, तो फिर ऐसा बंदा कर्जा लेकर कुर्बानी ना करे, कर्जा लेकर खाम अपने ऊपर बर्डन, बोझ ना बढ़ाए, कर्जा लेकर कुर्बानी ना करे। अगर किसी बंदे को पता है कि मैं कर्जा लेकर करूंगा तो नॉर्मल सी बात है अगले महीने में चुका दूंगा, तो फिर ठीक है कर ले, वगरना उसके ऊपर जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। जरूरी एक बंदा करता चला आ रहा है। एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि किसी ने कहा जी एक बंदा पहले कर रहा था, हर साल कुर्बानी करता था, अब अल्लाह की शान उस पर इस्तिताअत नहीं रही, तो किसी ने उससे कहा है जी अब भी तेरे पर करना जरूरी है, क्योंकि आप शुरू से कर रहे हो तो अब भी करना जरूरी है। गलत बात है। जब इस्तिताअत होगी तब कुर्बानी होगी, इस्तिताअत नहीं है कुर्बानी नहीं। ज़कात है, हज है, कुर्बानी है, ये इस्तिताअत पर मुनहसर है। अगर इस्तिताअत है कुर्बानी करे, इस्तिताअत नहीं है कुर्बानी नहीं है, इस्तिताअत नहीं है तो कुर्बानी नहीं है। भले एक बंदा 20 साल से कर रहा है, खुदा ना खास्ता बेचारे के हालात गड़बड़ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर उस पर कुर्बानी नहीं है। एक बंदे के 20 साल तक हालात साजगार नहीं थे, नहीं कर सकता था, 21वें साल इस्तिताअत आ गई तो कुर्बानी वाजिब होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कुर्बानी कर रहे थे तो अब नहीं भी है तो करनी है, नहीं। अगर कुर्बानी नहीं कर रहे थे अब आ भी गए तो नहीं करनी, ये भी गलत है। तो इसलिए जब इस्तिताअत है कुर्बानी है, इस्तिताअत नहीं है तो कुर्बानी नहीं, कुर्बानी नहीं है। तो इस चीज का ख्याल किया जाए। इसी तरह से अगर कोई बंदा उसने कुर्बानी का जानवर लिया और गुम हो गया, कुर्बानी का जानवर लिया और गुम हो गया, आजकल चोर लुटेरे भी बड़े, आप हजरात से भी मेरी दरखास्त है अपने जानवरों की हिफाजत करना। लुटेरे बड़े बड़े लोग गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं 2-3-4 बंदे, 2-3 बंदे, और वो गाड़ियों के अंदर बकरे भर के ले जाते हैं, यानी कि बेशर्मी की इंतहा है। तो आप हजरात भी अपने जानवरों की हिफाजत खुद किया करें, घर के अंदर बांधे या जहां पे हिफाजत हो। और दूसरा, बच्चों की भी हिफाजत करें, जिनके यहाँ बड़े जानवर हैं बच्चों की भी हिफाजत करें। जानवर जो है वो बच्चे को और बूढ़े को देख के भी अटैक कर देता है, तो जानवरों की भी हिफाजत करें, अपने घरेलू बच्चों की और अपने घरेलू सामान गाड़ियों की भी हिफाजत करें। कई दफा गाड़ियों को भी वो कर जाते हैं, तो ये सारी हिफाजत आपने इन दिनों में करनी है। तो कहने का मकसद है कुर्बानी का जानवर लिया तो चोर ले गया या गुम हो गया, जानवर खुद भाग गया, अब अगर इस्तिताअत बंदे की थी, साहिब इस्तिताअत था, उसके ऊपर दोबारा कुर्बानी लेना वाजिब है। अगर एक बंदा था बेचारा पहले उसने मुश्किल से ली थी कुर्बानी, अब वो गुम हो गई, तो दोबारा उसके लिए लेना जरूरी नहीं, दोबारा लेना जरूरी नहीं, बस उसका जो हो गया सो हो गया, अल्लाह कबूल फरमाएंगे, तो ये उसके लिए जरूरी नहीं। इसी तरह किसी जानवर में अगर शेयरिंग पे आप करते हैं तो बड़ा जो जानवर है, गाय है, ऊंट है, भैंस है, भैंसा है, इसमें 7 मैक्सिमम 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, इससे ज्यादा शरीक नहीं हो सकते,
इससे ज्यादा कम हो सकते हैं, 2 बंदे ने मिलकर गाय ले ली, 3 ने मिलकर ले ली, 4 ने मिलकर ले ली, 1 बंदे ने ले ली, वो हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 बंदे, इससे ज्यादा नहीं। ऊंट हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, इससे ज्यादा बंदे शरीक एक बड़े जानवर में नहीं हो सकते, इसका ख्याल किया जाए। इसी तरह जितने बंदे शरीक हैं सबकी नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, कुर्बानी की, गोश्तखोरी की नीयत नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी की नीयत होनी चाहिए। और इसी तरह अगर किसी ने कुर्बानी नहीं ली तो आप उससे पूछे नहीं भाई आपकी कुर्बानी है या नहीं है। आजकल हालात ऐसे ही है, एक बंदा आपको जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा है, इसकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन बेचारे की होती नहीं अच्छी, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, भाई आपने कुर्बानी ली है या कुर्बानी में क्या लिया है, या आपने बकरा अभी तक क्यों नहीं लिया, या फिर आपने क्या नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। जिसने लिया है ठीक है, अल्लाह कबूल करे, नहीं लिया अल्लाह उसको हिम्मत दे। किसी से छानबीन की, हाँ अगर आपका कोई ऐसा जिगरी दोस्त है, आप ऐसे हैं, ये बेतकल्लुफी है, वो अलग मामला है, लेकिन रैंडमली आप किसी से ना पूछे जी कुर्बानी ली है नहीं ली है क्या है वो नहीं। हाँ अगर कोई इसलिए से पूछता है कि मैं किसी तरह मालूम कर लूं, अगर इसने नहीं ली तो गोश्त पहुंचा दूंगा, फिर ठीक है, उसके हाल हवाल मालूम कर ले, वैसे ही जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए किसी को ऐसा नहीं पूछना चाहिए। इसी तरह एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है ईद के दिन, मैंने पिछली दफा भी किया था लेकिन लोग पता नहीं फिर भूल जाते हैं, ईद के दिन का रोजा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये चंद मिथ्स है हमारी कि ईद का दिन, अक्सर लोग पूछते हैं जी ईद का दिन रोजा, ईद के दिन रोजा है, ईद के दिन जब तक कुर्बानी हो, ईद के दिन कोई रोजा नहीं, रोजा रखना हराम है, छोटी ईद हो बड़ी ईद के 3 दिन हो, रोजा रखना हराम है, हराम है, हराम है। हाँ बस ये मुस्तहब है कि छोटी ईद में आप अलैहिस्सलाम का मामूल ये था, आप ईद के लिए तशरीफ ले जाते तो कोई मीठा छुआरे वगैरह खा के तशरीफ ले जाते, और बड़ी ईद में जब होते तो ऐसे तशरीफ ले जाते, वापसी आकर अपने गोश्त से ही तनावुल फरमाते, बस रोजा कोई नहीं। रोजा फ़इन्नहा क्लियर कट हजरत साहबा ताबीन से ये मनकूल है फ़इन्नहा अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व बिआलिन, ये खाने पीने और जिमा के दिन है, यानी सारे रोजे के मुनाफी है, इसमें कोई रोजा वगैरह इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। और कुर्बानी के गोश्त से खा ले ये मुस्तहब है। आजकल चूंकि बेचारे अक्सर लोग बीमार हैं, शुगर के मरीज हैं, और मां इतनी लंबी भूख बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, तो आप कुर्बानी जब ईद पढ़ के जाए आपने खाने खाए, आप जो खाने आप खा लें, इसमें कोई हरज वाली बात है, कोई ऐसी कोई हराम वाली बात नहीं है, आप खा पी सकते हैं, कोई इसमें वो ऐब वाली बात नहीं। इसी तरह से पूरे घर की तरफ से एक फर्द की कुर्बानी, मान लो कहते हैं जी एक घर का एक जो हेड है, सरबराह है, उसकी तरफ से कुर्बानी हो गई सारे घर से, ऐसा नहीं है। जो भी साहिब निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जो भी शरीयत का हर हुक्म साहिब निसाब के लिए है। हज के मुतालिक ये नहीं है कि घर का हेड कर ले तो फिर हज सबकी तरफ से होगा, नहीं, बच्चे साहिब निसाब होंगे उन पर अलग से हज फर्ज होगा, बाप साहिब निसाब हुआ उस पर अलग से हज फर्ज है, किसी एक के करने से सबसे साकत नहीं होती। जिस तरह नमाज है, अब घर का हेड पढ़ने सबसे काफी नहीं होती, वो जब बच्चे बालिग होंगे उनके ऊपर फर्ज होंगे। इसी तरह कुर्बानी है, जो भी साहिब निसाब होगा, घर का हेड सरबराह साहिब निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। बीवी है, उसके पास सोना रखा हुआ है, चांदी रखी हुई है, साहिब निसाब हो गई, उस पर कुर्बानी है। बच्चे हैं, उनका अलग से कोई सेटअप है, जॉब है, बिजनेस है, वो साहिब निसाब हो गए, उन पर अलग से कुर्बानी है। हर पर जो भी साहिब निसाब होगा अलग से कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ अगर कोई ऐसा सिस्टम है, ज्वाइंट सिस्टम है कि वालिद साहब करते हैं, बच्चे साथ में करते हैं, और जो कुछ भी आता है बच्चे वालिद साहब के हैंड ओवर कर देते हैं, उनसे अपनी पॉकेट में नहीं लेते हैं, बाकी सारा वालिद साहब के हाथ में ही है, तो फिर ठीक है वालिद ही कर ले, वालिद ही कर ले। मगर ना हुक्म तो है फसल लिली रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी करिए। नमाज से मुराद यहाँ पे जो वो शारीन हदीस लिखते हैं ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा है, और वनहर कुर्बानी से मुराद कुर्बानी का हुक्म है। तो जिस तरह ईद हर एक पर फर्ज है, इसी तरह निसाब वाले पर कुर्बानी भी वाजिब है। तो इसलिए जो भी साहिब निसाब है वो कुर्बानी अलग से करे, घर के सरबराह की तरफ से सबकी कुर्बानी काफी नहीं होगी। इसी तरह मरहूमीन, बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि इस्तिताअत है नहीं, एक कुर्बानी की इस्तिताअत है, वो कहते हैं मैं अपने मरहूम वालिद की तरफ से कर देता, नहीं, अपनी तरफ से आपने करना। अगर आप पर वाजिब है पहले अपनी, बाद में इस्तिताअत है वालिदैन की तरफ से करें, बहुत अच्छी बात है, आप अलैहिस्सलाम की तरफ से करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पर वाजिब है सबसे पहले अपनी, उसके बाद फिर हमारे हुकूक है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हम पर हुकूक है, इतने हुकूक हैं कि हम अदा नहीं कर सकते, वालिदैन के इतने हुकूक हैं हम अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस्तिताअत दी, फिर उनका अलग से हिस्सा रखें, अलग से उनके नाम के जानवर लें,
بلکہ خوبصورت جانور لے ان کے نام پہ قربانی کرے. لیکن اگر پھر وہی بات ہے آپ پر واجب ہے اور آپ کی استطاعت ایک ہی ہے تو آپ اپنے کریں گے. اسی طرح سے ایک اور معرکۃ الحرام مسئلہ کٹے کی قربانی, بھینسے کی قربانی. اب عجیب چیزیں سننے کو ملتی ہے. تو بھائی کٹے کی قربانی, جس شوق سے کٹا کھاتے ہیں اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں, شوق سے پیتے ہیں, اسی شوق سے قربانی بھی کرے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی گائے کی قسم ہے, علماء کا اس پر اجماع ہے. الجاموس نوع من البقرہ, کہ یہ بھینس یہ گائے کی قسم ہے. اب آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی نہیں, اس وقت نہیں تھی, اس ایریا میں نہیں تھی, اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ملتا. لیکن ہر چیز کا کلیئر کٹ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اب جس طرح مثال ڈمبا ہے, اب ڈمبے کی بھیڑوں کی کئی قسمیں ہیں. اب قرآن میں تو ڈمبے کا ذکر ہے, باقی قسمیں اسی کتابیں ہیں. اسی طرح قرآن میں گائے کا ذکر ہے, بھینس گائے کی قسم ہے, لہذا یہ بھی گائے کے حکم میں ہے. اگر اس کو ہم نام نہ ہونے کی وجہ سے قربانی سے نکالتے ہیں, پھر اس کا دودھ کیسے حلال ہے, اس کا مکھن, اس کا دیسی گھی, اس کا گوشت, یہ ساری چیزیں پھر ہم نکالنی پڑیں گی کہ یہ ہم کیسے پی رہے ہیں, پھر یہ ہم کیسے پی رہے ہیں. تو اس لیے بلا کراہت کے اس کی قربانی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ بھی ہم بھینس کو گائے پہ قیاس کرتے ہیں, وگرنہ بھینس کا تو ذکر نہیں. پھر اگر کسی کے پاس زکوٰۃ ہے, بھینس کی دینی ہے, تو وہ کیسے ہے, پھر ہم کہتے ہیں گائے کی قسم ہے, لہذا جس طرح گائے کا حکم ہے اس کا بھی حکم. تو اس لیے قربانی میں بھی ایسا ہی ہے, جس طرح گائے کا حکم ہے اسی طرح بھینس کا حکم ہے. بھینس کی کٹے کی قربانی ایسی ہے جیسے بیل کی, بچے کی, ویڑے کی, گائے کی قربانی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے, بلا کراہت یہ ٹھیک ہے, اس میں ایسے وسوسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں موٹی موٹی میں نے عرض کر دی ہیں. تو ایک تو مسائل کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہماری قربانی تاکہ ٹھیک ہو جائے, ان کا علم ہمیں ہونا چاہیے, اپنے استطاعت کا پتہ ہونا چاہیے, جانور لیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. پھر آگے ذبح کے مسائل وہ انشاءاللہ عید پہ کریں گے. تو ذبح کے مسائل کوشش کریں جو ذبح کرنے والا وہ اناڑی نہ ہو, ذبح کرنے والا ماہر بھی ہو, مسلمان بھی ہو, ماہر بھی ہو, مسلمان, کوئی رافضی, کوئی عیسائی, کوئی اور, کوئی جو ہے وہ کافر کوئی قسم کا نہ ہو, مسلمان ہو, تکبیر پڑھے اور اس کے بعد پھر ذبح کرے. تو اس لیے اس کی بھی کوشش کرنی ہے, ذبح کرنے والے کا بھی بڑا خیال کرنا ہے. اور آخری بات تکبیرات تشریق کی. تکبیرات تشریق 9 اتوار کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو رہی ہیں, 9 ذی الحجہ. اور یہ بھی میں نے بات پچھلے جمعے میں بھی کہی تھی کہ حج کوئی بھی اسلامی مہینہ ہے, 9 ذی الحجہ ہے, محرم ہے, ربیع الاول ہے, چاند ہے, یکم شوال ہے, یکم رمضان ہے, اس کا شب قدر ہے. ہمارے یہاں کے, ہمارے خطے کے چاند کا اعتبار ہوگا, یہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا. سعودیہ میں کیا ہے, آسٹریلیا میں کیا ہے, فلاں ملک میں کیا ہے, ہمیں سے کوئی غرض نہیں. ہمارے یہاں کے تو 9 کا جو ہے وہ عرفہ کا روزہ ہمارے یہاں اتوار کی صبح کا ہے, 16 کی صبح کا ہے. اور اسی طرح تکبیرات تشریق بھی 9 کی فجر سے شروع ہو رہی ہیں اور 20 کی شام تک یہ چلیں گے. 20 جون کی شام, 20 جون کی شام 13 ذی الحج کے اثر تک یہ چلیں گی تکبیرات تشریق. یہ ایک دفعہ کہنا, ہر مرد عورت پر اکیلا نماز پڑھے, جماعت کے ساتھ پڑھے, اس کو تکبیرات تشریق اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, یہ کہنا واجب ہے. اور خاص کر آپ حضرات سب کوشش کریں گھروں میں, خاص کر اپنی خواتین کو بتائیں. ہمارے ہاں تو ہمارے مردوں کا یہ مسئلہ ہے, مسجد میں ہے, بھول بھی گئی ہے, بلکہ امام بھی بھول گیا ہے, تو مقتدی پڑھیں گے تو سب کو یاد آ جائے گی, کوئی ایک بھولا ہوا سب پڑھیں گے یاد آ جائے گی. خواتین بیچاری اکیلی نماز پڑھنی ہے گھر میں, ان کو یاد نہیں رہتی تو واجب رہ جاتا ہے. بلکہ کوشش کریں آپ ان کے لیے تو ایسا چارٹ وغیرہ لکھ کے ان کی نماز والی جگہ پہ جو ہے وہ لٹکا دیں اور ان کو یاد کروا دیں تاکہ واجب وہ بھی ادا کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.